نے اپنے قیمتی نذرانے جو ہیں وہ خداوند کے حضور پیش کیے. خواتین نے میرا خیال ہے کہ دن بھر محنت کی ہے، کھانے بنائے ہیں، باہر جو ٹیبل سجے ہیں، اور خدا کی دی ہوئی جو نعمتیں ابھی ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہی ہیں، ان سب کے لیے ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے. تھینکس گیونگ یعنی شکر گزاری کرنا، شکر گزاری دینا. اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کے تلاوت کردہ حوالہ کی طرف آئیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہمیں کیوں شکر گزاری کرنا ہے، کس بات کے لیے شکر گزاری کرنا ہے. آج آپ کے دل میں شکر گزاری کرنے کے لیے کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے لیے آپ چاہتے ہیں یا آپ کا دل جو ہے اس وقت شکر گزاری سے بھرا پڑا ہے؟ آج میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے صحت اور سلامتی دی. آج میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے زندگی کی نعمتوں سے نوازا. آج میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ میرا گھرانہ جو ہے وہ خوشحال ہے. آج میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ میری پیدائش ایک مسیحی گھرانے میں ہوئی. میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میرے باپ نے جو ہے اپنے پیارے بیٹے کو صلیب پر قربان ہونے کے لیے دے دیا تاکہ میں اور آپ مخلصی پائیں. میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس گھر کے لیے، اس کمرے کے لیے، اس عبادت گاہ کے لیے کہ جس سے میں نے روحانی خوراک پائی. میں شکر گزاری کرتی ہوں خدا کے خادمین کے لیے جن کے وسیلہ سے میں نے خداوند کے کلام کو سیکھا. کیا آپ سب ان تمام باتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو زوردار تالیوں سے اس کا اظہار کیجیے. ہم نے ہماری زندگی کے ایک ایک سانس جو ہے میرے خدا پاک قدوس خدا کی مقروض ہے. میری زندگی کی ایک ایک چیز کے لیے میں خدا کے قرضدار ہوں. کیا ایسا نہیں ہے؟ تو پھر کیا ہی واجب ہے کہ ہر سانس کے ساتھ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے اس کی شکر گزاری کریں. کیسی شکر گزاری ہم کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے گھر میں آ کر اس کے دیے ہوئے وقت اس کی زندگی کا شکر نہیں کرتے. کیسی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا آج ہم بریانی بنا کر، آج ہم کوفتے بنا کر، آج ہم اچھی اچھی ڈشز لا کر صرف خدا کی شکر گزاری کرتے کہ خدا نے مجھے زندگی کی یہ نعمتیں دی؟ خدا نے تو آپ کو پاؤں بھی دیے ہیں، خدا نے تو ہاتھ بھی دیے ہیں، خدا نے تو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، منہ دیے ہیں تاکہ آپ اس کی مدد سرائی کریں. کتنی آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آج صرف جمعہ کی عبادت میں، تھینکس گیونگ کی عبادت میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ انہوں نے یہاں سے برکت پائی ہے. تو اتوار کو یہ ساری برکت لینے والے کہاں ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ جب جس سبت کو اس نے پاک ٹھہرایا ہے اس سبت کو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کیا خدا کا حکم اس وقت یاد نہیں آتا؟ وہ برکت والا خدا تو ہر وقت برکت دیتا ہے. آج ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ شکر گزاری جو تھینکس گیونگ ہم کرتے ہیں، اس کا آغاز تھوڑا سا میں بتا دوں کہ 1621 میں اس کا آغاز جو تھا امریکہ میں کیا گیا. اور اس کی جب میں ہسٹری دیکھ رہی تھی تو تھینکس گیونگ کی ہسٹری جو ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ لوگ جب عبادت گاہوں میں آتے تھے، عبادت کرنے آتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ جو تھے کچھ کھانے بھی بنا کے لے آیا کرتے تھے کہ عبادت کے بعد سب میل ملاپ کے کریں گے، مل کر کھائیں گے اور اس کی شکر گزاری کریں گے. بہت سے ممالک میں ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب عبادات کے لیے جاتے ہیں تو اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے. پھر میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ جو ابتدائی کلیسیائیں ہوتی تھی اس وقت گاؤں کے ابھی کے کچھ عرصہ پہلے کے گاؤں کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی ہر چیز کی شکر گزاری خدا کے گھر میں پیش کرتے تھے. اور جیسے اگر ان کی بھینس نے بچہ دیا ہے تو پہلا بچڑا یا جو کچھ بھی
में लेके जाते, दूध का हिस्सा खुदा के घर में लेके जाते, फसलों के हिस्से लेके जाते। और कलाम मुकद्दस में मैं जब देख रही थी तो हमें नजर आया एक बड़ी खूबसूरत कहानी हन्ना की पेश की जाती है कि हन्ना ने अपने बाप से दरख्वास्त की, उसे कहा कि अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं अपने पेट के पहले फल को खुदा के लिए वक्फ कर दूंगी। और वो शुक्रगुजारी के लिए अपने बेटे को जो है वो काहिन के पास ले जाती है और उसे क्या करती है, हैकल में खुदा की खिदमत के लिए दे देती है। फिर मैं देख रही थी कि मसीह यीशु ने जब हम देखते हैं 5000 को खाना खिलाया, फिर मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा 4000 को खाना खिलाया, तो चंद एक रोटियों और चंद एक मछलियों को उसने शुक्र करके जब तोड़ा तो बचे हुए इतने टुकड़े जो थे वो बच गए कि खाने वाले भी शेर हो गए। और कहाँ हम देखते हैं कि चंद एक छोटी छोटी मछलियां और चंद एक रोटियां। सो शुक्रगुजारी हमें नजर आती है। ये हवाला जो हमने पढ़ा, मेरे साथ जरा इसको दोबारा देखिएगा, इसमें है और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया। किस लिए हमें बाप का शुक्र करना है? क्योंकि बाप ने हमें इस लायक किया। मेरी और आपकी औकात ही क्या कि हम उसका शुक्र करें। जिस तौर से हमें उसकी खुदाई की, जिस तौर से हमें उसकी नेमतों की, जिस तौर से हमें उसके हुजूर आने की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, वो तो हम जानते ही नहीं। वो शुक्रगुजारी तो हम करते ही नहीं। वो तो कहता है कि लायक तौर से मैं और आप तो गुनहगार थे, मैं और आप तो भटके हुए थे, मैं और आप तो खोए हुए थे, उसने हमें क्या किया, इस लायक किया कि उसके हुजूर आकर क्या करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। और इसके लिए बड़ा खूबसूरत हवाला एक और जो है आप मेरे साथ देखिएगा कि उसने हमें इस लायक किया। रोमियो पहला बाप उसकी 21 आयत बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, गौर से सुनिएगा, खुदा के कलाम आपकी तवज्जो चाहता है, खुदा का कलाम आप ध्यान से सुनेंगे तो बरकत पाएंगे। मरकूम है इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनकी बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। लायक तौर से अभी जैसे आज के दिन आप अलामती तौर पे शुक्रगुजारी कर रहे हैं, आप अपने घर से नेमती और बरकतें लेकर आए हैं, आप अपने खानदानों को लेकर आए हैं, लेकिन क्या है कि खुदा के खादिम को आज की शुक्रगुजारी की इबादत पे भी नौजवानों को इनको कहना पड़ा है, टोकना पड़ा है कि आपका ध्यान किधर है, आप कैसी प्रस्तिश करें। क्या ये है शुक्रगुजारी? इधर मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे, कानों में बातें, कोई संजीदगी नहीं, इधर कोई संजीदगी नहीं। क्या ये है शुक्रगुजारी? क्या खुदा इस शुक्रगुजारी के लायक है? हमारा खुदा गैरत वाला खुदा है। और याद करें कि जब उसको गैरत आई थी तो मसीह यीशु ने हैकल में क्या किया था, कोड़ा उठा लिया था। आप तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ नहीं कहा गया, आपका तो ध्यान ही खुदा के कलाम की तरफ नहीं है। क्या ये शुक्रगुजारी, ये थैंक्सगिविंग करने के लिए आप आए? उनके दिलों पर अंधेरा छा गया और उन्होंने खुदा की खुदाई के लायक जो है उसकी शुक्रगुजारी ना की। गौर कीजिए, सोचिए, लम्हा फिक्रिया है कि क्या आज आप जो शुक्रगुजारी करने के लिए उसके घर में आए हैं, क्या वो ऐसी शुक्रगुजारी के लायक है? क्या आपका ध्यान आपके घर में रहे, आपका ध्यान अपने फोन पे रहे, आप बच्चों के साथ खेलते रहे, बच्चे आपस में नौजवान बातें करते रहे? क्या ये है उसके लायक शुक्रगुजारी? ये उसके लायक शुक्रगुजारी नहीं है। और अभी हमने पढ़ा कि इसलिए हमें शुक्रगुजारी करना है कि ये शुक्रगुजारी, इस शुक्रगुजारी की उसने हमें लायक ठहराया, वरना हम तो शायद उसके जो है पाँव की चौकी के करीब बैठने के लायक नहीं है। और उसने लायक ठहराया कि आज उसके घर में, उसकी हजूरी में आप उसके बेटे और बेटियां बनकर मौजूद हैं। शुक्र कीजिए, जोरदार तालियां खुदा के लिए जिसने
गुजारी करने की कि मुकद्दसों के साथ उसकी मेरास का हिस्सा बने। कौन सी मुकद्दसों की मेरास? हर कोई विरासत चाहता है, सब चाहते हैं मेरे माँ बाप से मुझे बड़ी जायदाद विरासत में मिले, सब चाहते हैं मेरास में मुझे बैंक बैलेंस मिले, सब चाहते हैं घर प्लॉट जगह मुझे मिले, मेरास में मुझे औलाद मिले। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुकद्दसों के साथ मेरास का वारिस ठहरा दिया उसने। कौन से मुकद्दसीन? क्या जानते हैं इब्राहिम को खुदा ने कितनी बरकत दी थी? कितने लोग जानते हैं इब्राहिम की बरकत? इसहाक को खुदा ने कितनी बरकत दे रखी थी? याकूब को खुदा ने कितनी बरकत दे रखी थी? आज मैं और आप जब दुआ करते तो हम कहते हैं बाप इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा। ऐसा ही है आज उन्हें मुकद्दसीन के साथ हमें भी उसने क्या ठहराया है? मिरास का हिस्सेदार ठहराया। इसलिए हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम उसकी मिरास के हमें इस लायक भी ठहराया और दूसरे नंबर पर उसने हमें मिरास में भी हिस्सा दे दिया। आज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास कोई मिरास है, आपके पास 10 मरले का प्लॉट है और कोई आपको कहे कि मेरे बच्चे को भी अपने मिरास का हिस्सेदार बना ले, तो क्या आप ऐसा करेंगे? आप तो अपने बच्चे का कोई जूठा कपड़ा भी ना दें, पुरानी जूती तक ना किसी को दे। और वो मेरे और आपके खुदा ने क्या किया? अब हम सबको मुकद्दसीन के बुजुर्गों की मिरास में क्या कर दिया? हिस्सेदार बना दिया। कैसी खुशकिस्मती है, कैसे लकी हैं आप कि उसने मुकद्दसीन के साथ जो है आपको हिस्सेदार ठहरा दिया, मिरास दे दी है। तीसरी चीज जो इस हवाला में हमने देखी कि हमें क्यों शुक्रगुजारी करना है कि तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर उसने हमें आजाद करवा दिया। तारीकी का कब्जा, तारीकी कौन है? इब्लीस, इब्लीसी कुव्वतें, इब्लीसी ताकतें। अब गौर कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा कोई हमसे गलती हो जाए, पुलिस पकड़ के ले जाती है। ऐसा ही है, ऐसा है, गर्दन हिल रही है, आवाज नहीं आ रही कि और हम पे अगर थाने में कोई रिपोर्ट लिख जाए तो हमारा क्या होता है? सारे का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। थाने से आप पैसे दे के साफ करवा ले, किसी और जगह आपका रिकॉर्ड गया होता है। यानी कि हमारे ऊपर लगा धब्बा जो है वो मिटता नहीं। सालों साल, बाज दफा तो बूढ़े होकर मर भी जाए तो कहते हैं जी इसके दादे को पुलिस पकड़ के ले गई। कैसा होता है? एक धब्बा हम पे लग जाता है कि इसने ये कसूर किया था, इस वजह से पुलिस इसे पकड़ के ले गई, इस पे मुकदमा चलता रहा है अदालत में, ये कसूरवार है, ये मुजरिम है। और देखिए मेरे और आपके खुदा ने हर मुकदमे से, हर बात से, हर जुर्म से, हर बदी से, हर गुनाह से क्या कर दिया है? हमें आजाद कर दिया है। खूबसूरत तालियां मेरे खुदा के लिए जिसने हर जुर्म को माफ करके हमें तारीकी से आजाद करवा दिया। और हवाला इस सिलसिले में देखिए कुलसियों 2 बाब की 14 आयत, कुलसियों 2 बाब उसके 14 आयत में बहुत खूबसूरती से लिखा है, वो और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हम